خدا کے کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے جو ڈھونڈ دے راہ یہوہ دا دل زندہ ہوئے انہاں دا مبارک اس دا حال جانو یہوہ اتے بھروسہ جس دا خدا کے کلام میں سے آج ہم اس بات کو بھی سیکھیں گے خدا دینے پہ قادر ہے اور دینے والا ہے۔ اگر ہم ابھی تک کچھ نہیں پا رہے تو اس میں ہماری کمزوری ہو سکتی ہے، خدا کی نہیں۔ اور جن زندگیوں نے بھی یسوع خداوند پاک خدا کے حضور میں محنت کی، خدا نے ان کی زندگی میں نئی برکتیں بھری۔ خدا کا کلام ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، بڑے رہنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں کچھ اور طرح کی تعلیم دیتا ہے۔ نکالیں میرے ساتھ پہلا پطرس اور اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، پس بائبل مقدس میں جب بھی لفظ پس، اس کا مطلب ڈیسیژن ہے۔ پس اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ پس کیا کرنا ہے؟ یہ رزلٹ ہے۔ پس تم نے کرنا کیا ہے؟ ہر طرح کی بدخوائی۔ آج کلیسیا مار کھا رہی ہے، چرچ کے اندر رہ کے بھی زندگی میں بدخوائی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں، نفرتیں ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے خاندان کے افراد میں، ایک دوسرے کے لیے دل میں ہر طرح کی بدخوائی ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے، پس ہر طرح کی ایوری سب کچھ جو بھی تیری ہو سکتی ہے اپنے پہلے اندر سے نکال۔ ابھی ہم گیت گا رہے تھے، بھر دے نو، خدا کچھ دیکھنا چاہتا ہے، کچھ ہماری زندگی میں سے نکلتا ہوا دیکھنا چاہتا۔ پس ہر طرح کی بدخوائی اور سارے فریب اور ریاکاری، پوری لسٹ ہے۔ بدخوائی، فریب، ریاکاری، اور یہ غیر قوم کے اندر نہیں، یہ کلیسیا کے اندر ہے۔ یہ پیغام کلیسیا کے لیے ہے، کسی غیر قوم کے واسطے نہیں ہے۔ یہ اس کلیسیا کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پاک روح سے ممور کہلاتی ہوگی۔ خدا کا کلام پطرس کے وسیلہ سے کہ پس ہر طرح کی بدخوائی، سارے فریب، ریاکاری، حسد۔ آج کلیسیا کے اندر سب سے بڑا جو یہ ابلیس کا منصوبہ ہے وہ حسد ہے۔ ایک پادری دودھے نال نہیں بنتی، حسد ہے۔ وہ اتنی برکت مل گئی، مینوں کیوں نہیں؟ تو اگر تینوں نہیں تے خدا کا دین والا انہوں ہے، تے خدا دین والا تینوں ہی ہے۔ آمین آمین۔ ہر طرح کے بدخوائی، سارے فریب، ریاکاری، حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے، اپنے کول رکھ کے نہیں، اپنی زندگی میں رکھ کے نہیں، دور کر کے کیا کرنا ہے تم نے؟ نوزاد بچوں کی مانند، نیو بورن بیبی کی طرح، نوزاد بچوں کی مانند ہم بڑا ہونا چاہتے ہیں۔ خدا ہمیں چھوٹا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور کس لیول میں؟ جو بچہ بھی دنیا میں آتا ہے، اور جو بچہ دنیا میں آتا ہے اسے صرف ایک ہی خواہش ہے کہ ماں کا دودھ ملتا رہے۔
माँ का दूध नहीं मिलेगा वो रोएगा, और माँ जिस हालत में भी होगी माँ उसे दूध देगी। ये हकीकत है, माएँ सब जानती हैं। और खुदा का कलाम यही कहता है कि बस हर तरह की बदखाई, सारे फरेब, रियाकारी, हसद, हर तरह की बदखाई को दूर करके नौजाद बच्चों की मानद खालस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। खालस और रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। तुम्हारी चाहत अगर हो तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के मुताबिक रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, उसी की चाहत रहे। छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसकी एक ही चाहत है, माँ उसके पास रहे। उसकी एक ही चाहत है कि माँ उसे दूध दे। आज बेशुमार बच्चे हैं जो डब्बे की परवरिश हैं, लेकिन जो डब्बे की परवरिश हैं उनकी फिर ताकतें भी वैसी हैं। लेकिन जो माँ का दूध पे पलते हैं, कहते हैं कि बुढ़ापे जो मुझ भी कह दे रहे कि मैं अपनी माँ का दूध पीता। आमीन। इधर खुदा का कलाम हमें कहता है कि हमें उस नौजाद बच्चे की मानद मुश्ताक रहना है। क्यों? ताकि इसके ज़रिया से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। इसके सवाल और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम रूहानी दूध के मुश्ताक रहोगे तो नजात तुम्हारी जिंदगी में आएगी। जिस खुदा ने नजात का इंतजाम सलीब के ऊपर किया, उसकी नजात तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। कब? जब तुम रूहानी दूध के मुश्ताक रहोगे। इसके जरिया से तुम नजात के लिए बढ़ते जाओगे। आमीन। तो गोया जो जिंदगी चाहती है कि मेरी जिंदगी में नजात का काम रहे, नजात में बढ़ूं, तो उसे रूहानी दूध पीना पड़ेगा। ये खुदा कलाम कहता है। और किसकी मानद? नौजाद बच्चे की मानद। और खुदा देने पे कादिर है। बोले आमीन। इसका मतलब है कि जो फरमाता है वो देने पे भी कादिर है, वो देने वाला भी है। आमीन। और यशायाह की किताब में ये जिक्र है, यशायाह की किताब में इसका हमारे पास हवाला है कि खुदा हमारे लिए क्या कुछ करने पे कादिर है। खुदावंद फरमाते हैं, खुदावंद यशायाह की किताब में फरमाते हैं, उसका 49वां बाब और उसकी 15वीं आयत, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए, अपने न्यू बॉर्न बच्चे को भूल जाए, उसको दूध देना भूल जाए, उसकी निगहदाश्त करना भूल जाए? खुदावंद फरमाते हैं, सवाल करते हैं, क्या ये मुमकिन है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। आमीन। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए, अपने रहम के फरजान पर तरस ना खाए? खुदावंद फरमाते, हाँ, शायद वो भूल जाए। शायद वो भूल जाए। शायद ऐसा मौका हो सकता है कि माँ अपने उस शीरखार बच्चे को भूल जाए, लेकिन खुदा अपनी गारंटी देता है और खुदा लिख के हमें देता है, शायद वो भूल जाए पर मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना भूलूंगा। बोले हालेलुया। आमीन। हाँ, वो शायद भूल जाए पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेलियों पे खोद रखा है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। शीरखार बच्चे को माँ भूल जाए, लेकिन मुमकिन नहीं है, लेकिन शायद वो भूल जाए, लेकिन मैं तुझे ना भूलूंगा, मैं तुझे दूध दूंगा। जब भी तू पुकारेगा, जब भी तू मुझे कहेगा, मैं तुझे दूंगा। ये खुदा हमारे साथ वादा फरमाता है। इसलिए पतरस कहता है कि तुम हर तरह की बदखाई को दूर करके, फरेब, रियाकारी को दूर करके, हसद को अपने दिल से दूर करके
आओ किसकी तरफ? अपनी माँ की तरफ, माँ से बढ़कर प्यार करने वाले खुदा की तरफ, ताकि वो तुम्हारी जिंदगी में निजात का काम करता चला जाए। बोले हालेलुया, आमीन। और माँ के दूध में से कुव्वत आती है। उधर खुदा ने फरमाया था मुझ में से कुव्वत निकली है, और कुव्वत लेने के लिए उस औरत को यीशु के पास आना पड़ा, और बच्चे को माँ के पास रहना पड़ेगा। इसलिए खुदा कलाम कहता है कि खुदा की हजूरी में कमाल खुशी है। बोले आमीन। ये बरकत पाने का राज है माँ के दूध के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर खुदा का जलाल है, खुदा की कुव्वत है। तो दूध लेना पड़ेगा। किसकी मानद? नौजाद बच्चे की मानद है। जिस माँ के बच्चे को एक ही ख्वाहिश है, मेरी माँ दुध मैनू देंदी रहे, तो खुदा हर वक्त देने पे कादिर है। हालेलुया। बच्चा को टाइमिंग नहीं देखता कि कौन सा टाइम मुझे दूध लेना है, हर वक्त वो दूध लेने के लिए तैयार रहता, मुश्ताक है। आमीन। और दाऊद कहता या रब मेरा शौक है। आज बेशुमार शौक बढ़ गए हैं। उन शौक ने जिंदगी में अपना मकाम पैदा किया है। खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में जो शौक़ पैदा करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ रूहानी दूध का मुश्ताक देखना चाहता है। आमीन। और इसके ज़रिया से निजात है। आमीन।